السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا خوش آمدید ہے کارٹون کلاسز پر۔ یہ بی ایم ایس طلبہ کے لیے خاص طور پر ہم نے یہ ویڈیو پیش کرنے کی جسارت کی ہے۔ امراض عروق دمیہ ہمارے جسم کے اندر تمام تر عروق ہوتی ہیں، بلڈ ویسلس ہوتی ہیں۔ ان بلڈ ویسل سے منسلک 3 امراض آپ کے سلیبس میں دیے گئے ہیں۔ تینوں کو مجموعی طور پر جانکاری فراہم کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ پہلا مرض ہے تصلب شرائین، جسے انگریزی میں آرٹریوسکلروسس کہتے ہیں۔ دوسرا مرض ہے التہاب ورید تکشری، جس کو ہم تھرامبو لیویسائٹ کہتے ہیں۔ اور تیسرا مرض ہے ضغط الدم قوی۔ یہ تینوں امراض سے منسلک تعریف اور دیگر ناحیت امراض انشاءاللہ بیان ہوگا۔ سب سے پہلا مرض ہے تصلب شرائین۔ یہ 2 لفظ کا مجموعہ ہے، تصلب اور شرائین۔ تصلب لفظ صلیب سے ماخذ ہے۔ آپ نے سنا ہوگا 12 علماء اکرام سے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر چڑھا دیا گیا تھا۔ صلیب کچھ اس طریقے کے لکڑی کا آلہ تھا کہ بہت سخت، لکڑی جس طریقے سے سخت ہوتی ہے اس طریقے سے سختی، تو وہیں سے یہ لفظ ماخذ ہے۔ تصلب، ہماری شرائین اتنی سخت ہو جاتی ہیں کہ خون کے گردش میں رکاوٹ بن جاتی ہے۔ یہ خاص طور سے عمر کے ساتھ مرض بڑھتا ہے۔ جب انسان ذوق کو پہنچتا ہے اس وقت اس کی شرائین جو ہے تصلب ہو جاتی ہیں، اس پر سختی ہو جاتی ہے۔ سختی کے باعث سوراخ تنگ ہو جاتا ہے اور جو خون کی گردش ہے وہ بہت ہی کم ہو جاتی ہے۔ تو اسی کو ہم جو ہے تصلب شرائین کہتے ہیں۔ آئیے دیکھیے اس پکچر میں، یہ اوریجنل پکچر ہے، نہ کہیں نیٹ سے لی گئی ہے نہ کہیں سے، یا خود کی جو ہے مائکروسافٹ پینٹنگ پہ بنائی گئی ہے۔ یہ آپ کو اوپر والے حصے میں یہ 3 حصے میں تصویر بٹی ہوئی ہے۔ پہلا حصہ آرٹریوسکلروسس یا تصلب شرائین سے منسلک ہے، دوسرا التہاب ورید تکشری سے منسلک ہے، اور تیسرا ضغط الدم قوی سے منسلک ہے۔ یہ آپ کی نارمل شرائین دکھائی گئی ہے جس میں سوراخ بالکل کشادہ ہے، کہیں کوئی جو ہے تنگی نہیں ہے، اس میں خون کی گردش قائم ہے اور روانی چل رہی ہے۔ جو ہے وہی جو ہے نیچے جو ہے وہی شرائین ہے، لیکن اس میں پلیک یا سدہ جمع ہو گیا ہے۔ یہ پلیک اور سدہ جو ہے چربی وغیرہ کے جمع ہو جانے کی فیٹس پارٹکلس جو ہے ڈپازٹ ہو جاتے ہیں، جس کے باعث یہاں پر جو ہے پلیک جب فارمیشن ہو جاتا ہے، جس کو ہم پلیک کہتے ہیں۔ ابھرا ہوا مقام یہاں پر دکھائی پڑتا ہے جس کو ہم پلیک کہتے ہیں۔ اب دیکھیں یہاں پر جو ہے اتنا زیادہ شدید شکل اختیار کر گیا ہے یہ پلیک، وضاحت کے لیے کچھ زیادہ ہی جو ہے ہم نے اس کو کھینچ دیا ہے۔ اب دیکھیے اس میں جو ہے مقام شرائین کا کتنا تنگ ہو گیا ہے۔ اب یہاں سے اگر خون گردش کرتے ہوئے نیچے کو جا رہا ہے یا نیچے سے گردش کرتے ہوئے خون اوپر کو جا رہا ہے، تو اب جو ہے یہاں سے یہاں تک تو آسانی سے آ جائے گا، لیکن یہاں پر مقام اس کا تنگ ہو جائے گا۔ جس طریقے سے پانی جو ہے کسی نالی سے بہے اور نالی کا مقام کم تنگ ہو جائے تو پانی کے بہنے میں رکاوٹ پیدا ہو جاتی ہے، اسی طریقے سے خون کے گردش میں رکاوٹ پیدا ہو جاتی ہے۔ تو یہ اس کا نتیجہ ہے، اس کا نتیجہ ہے۔ اس کا سبب تو ہم نے بتایا کہ پلیک کا فارمیشن جو چربی وغیرہ کی وجہ سے ہوتا ہے، اور یہ نتیجہ ہے کہ خون کی روانی کم ہو جائے گی۔ جب خون کی روانی کم ہو جائے گی تو قلت آکسیجن یا ایپاکسیا جسے کہتے ہیں، آکسیجن نہیں ملے گی یا کم ملے گی، جس سے ڈسفنویا کی کیفیت کہتے ہیں، سانس میں تنگی ہوگی، دم گھٹے گا۔ یہ تمام امراض جو ہے اور پریشانیاں لاحق ہو جائے گی انسان۔ دوسرا التہاب ورید تکشری،
شرائن آرٹریز کو کہتے ہیں، ورید وینز کو کہتے ہیں، اور التحاب یہ لفظ لہب سے ماخذ ہے۔ قرآن پاک کی آیت آپ نے جو ہے المسد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبت یدا ابی لہب وتب، آپ نے اس کو سنا ہوگا۔ آئیے اس کو ایک بار ہم مزید جو ہے علماء کرام کی زبانی آپ کو سناتے ہیں، اور پھر انشاءاللہ مزید اس کی ہم وضاحت آپ سے کریں گے۔ جو ہے تھوڑا سا آپ ہمیں وقت دے دیجیے، اس کے لیے ہم آپ کے ممنون ہوں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹے اور وہ ہلاک ہو، ما اغنى عنہ مالہ وما کسب، نہ تو اس کا مال ہی اس کے کچھ کام آیا اور نہ وہ جو اس نے کمایا، سیصلی نارا ذات لہب، وہ جل بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوگا، وامرأته حمالة الحطب، اور اس کی جورو بھی جو ایندھن سر پر اٹھائے پھرتی ہے، في جيدها حبل من مسد، اس کے گلے میں مونچھ کی رسی ہوگی۔ بسم اللہ، تو جناب آپ نے جو ہے قرآن پاک کی آیت المسد کی تلاوت کا شرف حاصل کیا جو ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ نے جو صبر کیا اس کے لیے جو ہے آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ تو التحاب لفظ جو ہے وہاں سے ماخذ ہے، جو لہب، لہب کے معنی جو ہے شعلے کے معنی بھڑکنے کے ہوتے ہیں۔ مفسرین یہاں پر لکھتے ہیں کہ اس کا اسم بھی ابو لہب اور اس کی صفت بھی ابو لہب، وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عداوت اور دشمنی کی بنا پر ہمیشہ جلتا رہتا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے یہ ڈنگے کی چوٹ پر اعلان کر دیا کہ اس کا انجام بھی جہنم کا شعلہ ہوگا۔ تو اس طریقے سے یہاں پر التحاب ورید تکشری مراد یہ ہے کہ ورید میں التحاب ہوتا ہے، سوزش ہوتی ہے اور جلن پیدا ہوتی ہے، آگ جیسی جو ہے جلن پیدا ہوتی ہے، اس کو ہم التحاب کہتے ہیں۔ یہ التحاب لفظ کئی جگہ پر آپ کے ویڈیوز میں آیا ہے، لیکن التحاب کے لغوی معنی نہ معلوم ہونے کی وجہ سے بچے بہت پریشان ہوتے ہیں۔ ورم اور سوزش، ورم اور سوزش تو ہوتی ہی ہے، اس کے علاوہ اس میں جلن ہوتی ہے، آگ کی طرح بھڑکتا رہتا ہے جو، تو اس کو ہم جو ہے التحاب ورید تخصری کہتے ہیں۔ اور تیسری چیز ہے ضغط الدم قوی، اس کا مطلب بلڈ پریشر کا ہائی ہو جانا۔ جب ذیابیطس شکری ہوگا یا ورید کا سوراخ تنگ ہو جائے گا تو خون کی روانی میں دقت پیدا ہوگی، اور جس کی وجہ سے بلڈ پریشر انسان کا عروج پر ہو جاتا ہے، اٹھ جاتا ہے، ہائی ہو جاتا ہے، جس کو ہم ضغط الدم قوی، قوی مانے اضافہ ہو جانا جو ہے، یہ آپ کے لغوی معنی ہیں۔ آئیے مزید ہم سنتے ہیں۔ التحاب لفظ لہب سے ماخذ ہے، جس کے لغوی معنی آگ کے شعلے اور انگارے کے ہیں۔ قرآن پاک کی سورہ المسد میں ابو لہب کا ذکر ہے، جس کا چہرہ شعلہ رو تھا، اس لیے ابو لہب شعلہ رو کی کنیت سے مشہور تھا، اور آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی عداوت کرتا تھا کہ اللہ پاک نے اس کا ٹھکانہ جہنم قرار کر دیا گیا۔ قرآن شریف کی آیت جو آپ نے سنا وہی یہاں پر لکھا گیا ہے، اور اس کا ترجمہ بیان کیا گیا ہے۔ اب تسلی ہوئے شرائن کی اور مزید وضاحت آپ کے سامنے پیش کرنے کی جسارت کر رہے ہیں۔ تعریف
शराइन की दीवारों का मोटा होना, सख्त होना और लचक से महरूम हो जाना और खून के बहाव का मुतासिर होना। ये पहले ही मैंने आपको बताया था कि ये लफ्ज़ सलीब से लिया गया है और सलीब के माने सख्ती से है। शराइन सख्त हो जाती हैं, उनकी लचक ख़त्म हो जाती है। जब जिस चीज़ में सख्ती आ जाएगी, लचक जो है ख़त्म हो जाएगी। इंसान ही जब सख्त हो जाता है तो उसके अंदर लचक मायूब ख़त्म हो जाती है। उसी तरीके से शराइन के अंदर भी जब सख्ती होती है तो लचक, इलास्टिसिटी ख़त्म हो जाती है और खून के बहाव मुतासिर होता है, यानी कम हो जाएगा। वजह तस्मिया तसल्लुक, सख्ती शराइन आर्टरीज को कहते हैं, यानी शरियानों की सख्ती। तसल्लुक शराइन, आर्टेरियो स्क्लेरोसिस, असबाब कसरत, चर्बी और कोलेस्ट्रॉल। शुरू में मैंने आपसे अर्ज़ किया था कि ये जो है चर्बी वगैरह के जमा होने के बाइस आपका प्लेक फॉर्मेशन होता है। ज़याबीतस शकरी का नाम पहले भी मैंने लिया था, जिसे हम डायबिटीज़ मेलाइटस के नाम से जानते हैं। जब इजाफी शुगर खून के अंदर हो जाता है तो उस अर्ज़ा को हम ज़याबीतस शकरी के नाम से जानते हैं। उसके बाद आपका हाई ब्लड प्रेशर, जब जो है ज़याबीतस शकरी, शक्कर की मकदार जो है ज़्यादा हो जाएगी तो ये जो है ज़िक्रुल कौवी का एक जो है सबब बनेगा। जो है तंबाकू नोशी, बुढ़ापा, हमने पहले ही बताया था कि जो है उम्र के लिहाज से ये सख्ती जो है शराइन के अंदर होती है। कभी कभी नौरूसी मिजाज भी होता है, कुछ ख़ानदानों में इस तरीके की नौबत पाई जाती है कि तसल्लुल शराइन की कैफियत होती है। अब इसकी पैथोजेनेसिस, ये मर्ज़ की पैदाइश की वजह क्या है, किस किस तरीके से होती है, इसमें हम पैथोजेनेसिस जो है इस मर्ज़ की करेंगे। कोलेस्ट्रॉल और चर्बी शरीयान के अंदरूनी तह में जमा हो जाती है, जिसे हम एथेरोमेटस प्लेक कहते हैं। यह इंटिमा, आप जानते हैं कि जिसके खलियात कहीं के भी हों, वो 3 तहों की बनी होती हैं। जो सबसे अंदर के लेयर्स होती है उसको नाम इंटिमा है। सबसे बाहर वाला एक्सटर्ना होता है, फिर उसके बाद बीच में ट्यूनिका मीडिया होता है, और फिर पहले सबसे बाहर ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका मीडिया और ट्यूनिका इंटिमा। तो अंदरूनी जो है झिल्ली के अंदर ये प्लेक फॉर्मेशन होगा। जब अंदरूनी झिल्ली के अंदर प्लेक फॉर्मेशन होगा तो आपके रास्ता तंग हो जाएगा, सुराख तंग हो जाएगा, खून के जारी होने में दिक्कत, दुश्वारी पेश आएगी। जो है कम खून जो है कि मकदार यहाँ से वहाँ जो है रवां दवा होगा। प्लेटलेट्स और फाइबर की ज़्यादती होती है उसकी बिना पर भी, क्योंकि जो आपका प्लेक बनता है उस प्लेक में फाइब्रिनोजन एक मरहला आता है जिसमें फाइब्रिन छोटे छोटे फाइबर्स होते हैं और उसमें प्रोटीन, फाइबर्स और प्रोटीन के मजमुआ को हम फाइब्रिनोजन का नाम देते हैं और उसी से ये प्लेक फॉर्मेशन होता है। इसीलिए प्लेटलेट्स और फाइबरस की ज़्यादती, सख्ती और तंगी जो है खून का बहाव में मुश्किल होगा। इसका कुल असबाब नतीजा क्या होगा कि खून के बहाव में मुश्किल पेश आएगी। अलामात शुरू में अक्सर बिला अलामत, कोई अलामत ज़ाहिर नहीं होती, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, मर्ज़ की सख्ती बढ़ती है, शिद्दत बढ़ती है, उस तरीके से अलामात नुमाया होती हैं। उसके बाद दिल की जो क़ल्ब की बीमारी, ज़बह शदरिया और मायोकार्डियल इन्फेक्शन, एंजाइना पेक्टोरिस और अफलास क़ल्ब के बारे में पहले ही हम आपको बता चुके हैं। अफलास क़ल्ब में क़ल्ब के खलियात में नेक्रोसिस होती है। नेक्रोसिस से मुराद उनकी खलियात गलने लगती है। जब गलने लगती हैं और खलियात के ही मजमूई तौर पे हम टिश्यूज़ कहते हैं, और टिश्यू के मजमूए को आर्गन, और आर्गन से आर्गन सिस्टम, इस तरीके से आपके अज़ो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बना रखे हैं। तो यहाँ पर मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, जिसे इस्फलास क़ल्ब कहते हैं, इसमें खलियात गलती हैं। जब गल जाएंगी तो फिर उसके बाद सारा निज़ाम गरम भरम हो जाएगा और फिर खून की रवानी का कोई सवाल नहीं उठता है। इसलिए इंसान की मौत वाक़ हो जाती है, आखिरी वक्त आ जाता है। एंजाइना पेक्टोरिस हमने बताया था कि इसका नाम ज़बह शदरिया, ज़बा माने घुटना है, और सदरिया में सदर, सीने, चेस्ट में पेन होता है, शदीद पेन होता है। ये एंजाइना 3 तरीके का होता है, स्टेबल एंजाइना, अनस्टेबल एंजाइना और वेरिएंट एंजाइना।
जैसा कि मैं पहले वीडियोस में आपके अर्ज कर चुका हूँ। स्टेबल अंजाइना में आप कुछ देर तक आराम करेंगे तो सीने के दर्द में इफाका हो जाएगा, लेकिन अनस्टेबल अंजाइना में आपको आराम करने के बावजूद भी राहत नहीं महसूस होगी, और फिर जब और यह शदीद सूरत अख्तियार करता है तो मायोकार्डियल इन्फार्क्शन या इफलास कल्ब की तरफ बढ़ता है। दिमाग फालिस भी इसका एक अलामत है, ये भी हो सकता है। ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक हो सकता है, गुर्दे की बीमारी हो सकती है, टांग में चलने फिरने में दर्द महसूस होता है। अब तशखीस के लिए आप लिपिड प्रोफाइल, जब आप जो है टेस्ट डायग्नोसिस टेस्ट के लिए लैब में आप खून को लिपिड प्रोफाइल, टोटल इसमें 2 तरीके के लिपिड्स होते हैं, HLD या हाई डेंसिटी लिपिड HDL, और दूसरा है लो डेंसिटी। तो LDP लो डेंसिटी। आपको तीसरा ECG और एंजियोग्राफी करेंगे, कार्डियक डॉपलर करेंगे, CT स्कैन और MRI करेंगे, एंजियोग्राफी करेंगे, तो इसमें मर्ज की शिद्दत अपने आप तस्वीर में नुमाया हो जाती है। पेचीदगी, हार्ट अटैक आ सकता है, ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है, गुर्दा की नाकामी हो सकती है। इलाज जो है परहेज, जो इसका सबब ही शुरू में बताया गया था चर्बी है, इसलिए ऐसे ग़िज़ा का इस्तेमाल करने से परहेज करना पड़ेगा जो चर्बी जिसमें ज़्यादा है। कम चर्बी वाले ग़िज़ा जो है, बल्कि बगैर चर्बी वाले ग़िज़ा इस्तेमाल करें, सादा खाना खाएं, वो ज़्यादा आपके लिए सही है। सिगरेट नोशी को आपको तर्क करना पड़ेगा, ख़त्म करना पड़ेगा। अद्वियात जो है, स्टेटिन्स जो है, इसके लिए कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए स्टैटिन बहुत अच्छी दवा है जो कोलेस्ट्रॉल को कम करने के काम में आती है। उसके बाद ब्लड थिनर एस्पिरिन है, एंटी प्लेटलेट्स है, और फिर उसके बाद आपका कंट्रोल ऑफ BP। आप इस तरीके के जो है काम करें जिससे आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहे और डायबिटीज़ ना होने पाए। ये आपके प्रिकॉशंस है। जर्राही जो है, जब शिद्दत ज़्यादा हो जाती है तो एंजियोप्लास्टी वगैरह करके प्लेग जहाँ पर फॉर्म हो जाता है वहाँ पर बाईपास दे देते हैं, एक छोटी सी ट्यूब डाल देते हैं ताकि खून जो है उस मकाम को कुसादा करते हैं, वहाँ ट्यूब डाल देते हैं, तो उस ट्यूब के ज़रिए जो है खून रमा दमा हो जाता है, काम आ जाता है। दूसरा मर्ज़ आपसे जो मैंने अर्ज़ किया था, इल्तिहाब वरीद तख्सरी। ये लफ्ज़ पहले भी हम बता चुके कि इल्तिहाब लहब, जिसके माने शोला और भड़कती हुई आग के है, तो इसमें वरम भी होता है, सोजिश भी होती है और जलन भी होती है, शोलांगेजी भी होती है। और ये कहाँ पाया जाता है? पहला वाला मर्ज़ आपको शराइन में था, ये वरीद में होता है। कहाँ होता है? वरीद में। यहाँ पर क्या होता है? खून जम जाता है। ये लाल जो है आपको सर्किल दिखाया गया है, ये खून के जम जाने की अलामत है, उसी को डिनोट किया गया है, उसको सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन दिया गया है, क्लाट या थ्रोम्बोसिस जो है जिसे हम कहते हैं। आइए तारीफ इसकी देते हैं। वरीद वेंस की अंदरूनी तह में सोजिश और खून का तख्सर पैदा हो जाता है। ये तख्सर क्या है? क्लाट्स को तिब्बी इस्तिलाह में हम तख्सर कहते हैं। और इसीलिए थ्रोम्बोसिस जब लफ्ज़ हम इस्तेमाल करते हैं तो तख्सरुद्दम कहते हैं। तख्सर क्लाट और दम माने खून, खून के जमने को तख्सरुद्दम कहते हैं या थ्रोम्बोसिस इंग्लिश में कहते हैं। तो ये क्लाट का फॉर्मेशन होगा, कहाँ पर होगा? वरीद में होगा जो है। तो इसीलिए इसको हम इल्तिहाब वरीद तख्सरी कहते हैं। इसकी वजह से वरीद में इल्तिहाब हो जाएगा, सोजिश हो जाएगी और जलन पैदा होगी। वजह तस्मिया इल्तिहाब सोजिश, वरीद में तख्सर खून का जमना और आपको वेंस में सोजिश व क्लाट। असबाब: तवील बिस्तर पर लेटे रहना, जैसे या सर्जरी के बाद मोटापा, वरीदों पर चोट या इंट्रावेनस इंजेक्शन आपने गलत तरीके से लगवा लिया है या लगा लिया है, और फिर उसके बाद मौरूसी कुछ अलामात भी ख़ानदानी तौर पर एक जगह से दूसरी जगह पर मुंतकिल होता रहता है, जिसको हम क्लॉटिंग टेंडेंसी कहते हैं। एक और आपका मर्ज़ आपके सिलेबस में दिया गया है जिसको हम हीमोफीलिया कहते हैं। वहाँ पर खून नहीं जम पाता है और ये पूरे दुनिया में बहुत कम ही घरानों में है, लेकिन वो मौरूसी तौर पर एक दूसरे से मुंतकिल होता चला जा रहा है, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन की तरफ। फिर उसके बाद इसकी पैथोजेनेसिस,
पैथोजेनेसिस खून की सुस्त रवि, जब जो है खून की का बहाव कम हो जाता है तभी जमेगा। जब पानी जो है तेज़ी से निकलता चला जाएगा तब उसको नाली में जमने के इम्कान कम होता है, लेकिन जब पानी का बहाव रुक जाता है तो वहाँ पर जो है जम जाता है। उसी तरीके से खून की जब रवानी कम हो जाएगी तब जो है ये क्लाट बनने का इम्कान बढ़ जाता है। किसी भी चीज़ के मुंजमद हो जाने के, रुक जाने को, ठहर जाने को हम स्टैसिस का नाम देते हैं। आप लफ्ज़ों पर गौर करें, इंशाअल्लाह अपने आप जो है तबसरा आगे बढ़ता चला जाएगा। जहन को जो है मरकूज़ रखें। वरीद की दीवारों को नुकसान, ये जो आपकी भेंस है उसकी इंडोथेलियम जो अंदर वाली लेयर्स है उसमें जो है ज़ख्म हो जाएगा, जिसको हम इंडोथेलियल इंजरी के नाम से जानते हैं। खून का गाढ़ापन, हाइपर कोएगुलिटी, खून की कैफियत ऐसी हो जाएगी कि ज़रा सा जो है कहीं से चोट लग जाए, कुछ ज़ख्म हो जाए तो वो हाइपर कोएगुलेटिंग हो जाता है, यानी बहुत जल्द जम जाता है। खून के जमने का भी एक मुद्दत है, एक मेयार है, एक वक्त है, एक टाइमिंग है, लेकिन उस मुद्दत मुतय्यना मुद्दत से पहले ही ये जम जाता है। इसलिए जो है इसको खून का गाढ़ापन या हाइपर कोएगुलिटी के नाम से जानते हैं। ये तीनों को मिला करके विर्चो ट्रायड बनाते हैं। जो तो इस तरीके से आपके जो है ये अमराज, दो अमराज पर तबसरा हुआ। अब तीसरा है ज़ब्तुद्दम कवी। ज़ब्तुद्दम ब्लड प्रेशर, कवी हाई ब्लड प्रेशर को हम ज़ब्तुद्दम कवी के नाम से जानते हैं, जिसको जदीद मेडिकल टर्म में हाइपर टेंशन के नाम से भी जानते हैं। यूनानी टर्म में ज़ब्तुद्दम कवी अभी भी किताबों में इसी तरीके से चला आ रहा है। तारीफ इसकी क्या है कि जब शरीयान में फशार खून मुस्तकिल तौर पर, आप जानते हैं कि खून की जो ब्लड प्रेशर की शरह है वो क्या है 90 to 140। ये आपका निचला ब्लड प्रेशर है 90 और ये जो है हाई ब्लड प्रेशर आपको 140 है। इसी के बीच में इंसान का ब्लड प्रेशर बना रहता है। जब 90 से नीचे आ जाएगा तो उसको कहेंगे लो ब्लड प्रेशर, जब 140 से ज़्यादा हो जाएगा तो उसको हम कहेंगे ज़ब्तुद्दम कवी या हाई ब्लड प्रेशर। वजह तस्मिया ज़ब्त माने दबाव होता, अल्दम माने खून का बढ़ा हुआ दबाव। जब किसी भी चीज़ पर दबाव बनता है तो वो अपने आप प्रेशर डेवलप हो जाता है। जैसे आप जो है साइकिल की ट्यूब में हवा भर रहे हैं और दबाव बढ़ता जाएगा तो वो उसमें दबाव बनता चला जाएगा, और इसी की वजह से अगर आप उसको वज़न करें हवा भरने के बाद तो वो वज़न बढ़ा हुआ आपको मिलेगा। अगर खाली ट्यूब का वज़न करें तो कम बढ़ेगा। तो इसका से मुराद है, बात वाज़ेह हो जाती है कि दबाव बढ़ता है, इसको तो ज़ब्तुद्दम कवी कहते हैं। और जब दबाव बढ़ेगा तो खून की रफ्तार में खलफसार पैदा होगा, फसाद पैदा होगा, उसकी रफ्तार कम हो जाएगी, और जब कम हो जाएगी तो क्लाटिंग वगैरह के जो है आर्जा लायक होने लगते हैं। अक़साम प्राइमरी जब 90% के करीब है तो सबब नामालूम। सेकेंडरी किसी मर्ज़ की वजह से है, असबाब सेकेंडरी गुर्दवी अमराज, क्रोनिक किडनी डिसीज़, रीनल आर्टरी स्टेनोसिस। उसके बाद हार्मोनल आपको हाइपरथायराइडिज्म, कुसिंग, और ये आपके मर्ज़ हो सकते हैं। मोटापा ज़हनी हो सकता है। तो इस तरीके से आप इन तीनों पर जो है मोटी मोटी जानकारी आपने हासिल कर ली है। यहाँ पर एक जदूल है, जिस जदूल में तीनों की जो है बहुत ही मुख्तसर तौर पर उसकी तारीफ, उसका असबाब, उसकी पैथोजेनेसिस, उसकी अलामात, तशख़ीस, पेचीदगी और इलाज का तबसरा किया गया है। पहला जो है तसल्लुब शराइन, दूसरा इल्तिहाब तफसरी, और तीसरा आपको ज़ब्तुद्दम कवी। हम उम्मीद करते हैं कि आपने इस वक्त से कुछ न कुछ इस्तेफ़ादा हासिल किया होगा। आप गौर करेंगे तो आपका सिलेबस अपने आप इंशाअल्लाह तैयार होता चला जाएगा, क्योंकि ज़हनी तौर पर जब आप तैयार हो जाते हैं तो कोई भी दुनिया की काम दुश्वार नहीं होता है। लेकिन अगर ज़हनी तौर से आप तैयार नहीं होते तो एक सादा काम भी, एक हल्का काम भी आपको बहुत मुश्किल नज़र आता है। अल्लाह ताला आपको सेहत और ईमान की दौलत नसीब फरमाए। फ़ी अमान अल्लाह व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।